ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੌਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਜੀਵ ਦੋਸਾਂਝ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਨੋਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ ने अर्नी यूनिवर्सिटी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ताड़ियां जरूर बजदियां रहनियां चाहिए ने, खास चर्चा असीं करांगे। ते हुण मैं स्टेज से बुलाना चाहूँगी अनु कौशल जी नूं जो कि डायरैक्टर ने लैमरन टैक स्किल यूनिवर्सिटी पंजाब दे। सर तुसीं भी जरूर स्टेज ते पहुँचो ते ताड़ियां जरूर हो जाणियां चाहिए ने क्योंकि खास असीं गलबात करांगे जदों साडे मेहमान सिक्ख्या दे खेत्र दे विच खास गल करिए इन्नियां वड्डियां यूनिवर्सिटीज़ नूं चलाउण वाले माहिर डायरैक्टर वाइस चांसलर साडे नाल मौजूद होणगे। सवाल भी साडे मनां दे विच बहुत हुंदे ने क्योंकि जदों असीं सिक्ख्या दी गल करदे हां शुरू तो लैके हर उम्र तक बंदा रहता है तो सिक्ख्या बहुत जरूरी होंगी है। तो अज असी खास गलबात करांगे। साडे मेहमान पहुंच चुके हैं। ओवर टू यू प्रीति। शुक्रिया कीमत। जिस तरीके दे नाल असी पहला गल कीती सी स्कूल एजुकेशन दी तो हुण असी गल करांगे हायर एजुकेशन दी। जदों बच्चे यूनीवर्सिटियां दे विच जांदे ने उन्हां नूं किस तरीके दा माहौल मिलदा है, यूनीवर्सिटी दे विच बच्चिआं नूं किस तरीके दे नाल उत्थे सिक्ख्या दित्ती जांदी है ताकि वो अपने अगे दा भविष्य चुन सकण कि वो उत्थे जांदे ने की सिੱਖਦੇ ने। जिस तरीके दे नाल असी गल भी कर रहे सी सब तो पहलां कि AI किस तरीके दे नाल उन्हां बच्चिआं दी जिंदगी दे विच हुण एक अहम रोल भी निभा रहा, उसनूं लैके भी चर्चा करांगे। साडे नाल जुड़े होए ने प्रोफैसर संजीव दोसांझ जी डायरैक्टर ऑफ चितकारा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव वाइस चांसलर ऑफ अर्नी यूनिवर्सिटी कांगड़ा, अनु कौशल डायरैक्टर ऑफ लैमरन टैक स्किल यूनिवर्सिटी। सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत है। सर सब तो पहला मैं ਤੁਹਾਡਾ रुख करांगी। जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि ਬੱਚੇ जो है स्कूल तो निकलते हैं उस तो बाद कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ एक ਵੱਖਰਾ माहौल ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਜੋ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਵੱਲ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ AI ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? थैंक यू मैम। नमस्कार ऑडियंस। मैडम ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो सब तो पहला एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज आता है ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਐਟ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਕ ਆਰ ਐਫਰਟਸ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਮੈਸਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲ ਕੋਰਸਿਸ ਲਾਈਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, BEd, ਅਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3rd ਜਾਂ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ where they actually work on projects, on startups, and ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਟਾਈਪੈਂਡਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਆਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਅਰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ? सभी को नमस्कार। अर्नी विश्वविद्यालय की तरफ से मैं डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव। अर्नी विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जो कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, इन 3 स्टेट्स को कैटर करता है जी। और हमें हिमाचल में समझ करके ना कि हम बहुत ऊपर हैं या हम प्लेन में हैं, एक ऐसी एडवांटेज है हमें कि हम सभी एरिया स्पेसिफिक को कवर करते हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब हमसे एकदम
हमारे साथ एकदम अटैच है, विद इन 20 किलोमीटर्स। जी पठानकोट इज़ देयर। पठानकोट से बहुत सारे बच्चे हमें अरनी विश्वविद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए। एक सबसे अच्छी जो हमारे यहाँ एक स्कीम है जिसमें लड़कियों को, गर्ल्स को एजुकेशन देने के लिए, उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए एक पहल की गई है, जिसमें उनको बस की सर्विसेज विश्वविद्यालय तक लाने के लिए, घर ले जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है लड़कियों को स्पेशली, जिससे वो आगे पढ़ाई कर सकें। बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज और कैटेगरी स्कॉलरशिप। जो पंजाब के बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में एडमिशन्स लेकर के उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी की स्कीम्स हैं जिसमें जो बच्चे मान लीजिए फाइनेंशियली वीक हैं तो उनको भी हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने की स्कीम्स हमारे यहाँ हैं और बहुत सारे बच्चे इस स्कीम में पढ़ भी रहे हैं। एक बहुत स्पेशल स्कीम है कि स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई के साथ अर्निंग करना चाहता है तो वो भी स्कीम हमारे यूनिवर्सिटी में है और इस स्कीम का फ़ायदा अभी करेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे विश्वविद्यालय से ले रहे हैं, जो शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और साथ में वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे करके एक स्टाइपेंड के तौर पे वो एक पैसे से जो भी उनको सपोर्ट हो सकता है, फाइनेंशियली सपोर्ट, दैट दे आर डूइंग ओवर देयर। तो मैं कहूँगा कि अरनी विश्वविद्यालय, पंजाब के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पे अपनी एजुकेशन लेकर के इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जी मैं अनु कौशल जी का भी रुख करूँगी। मैम सबसे पहले तो मुझे लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी का विज़न बताइए कि विज़न क्या है। Sat Sri Akal and awesome afternoon everyone. Really humbled and honored to be here. सबसे पहले अगर मैं लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी की बात करूं, काफ़ी शानदार लेगेसी रही है। पर अगर स्किल्स यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो चाहे इसे काफ़ी हम फ्रेश नज़रिए से देखें कि चाहे 5 साल हुए हैं इसे पंजाब में आए हुए, बट आई कैन प्राउडली से कि इन 5 सालों में लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी ने इतनी लाइफ्स पे इम्पैक्ट किया है। एंड ये सारे बच्चे जिस तरह से सर ने बताया काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। एंड आई कैन प्राउडली से दैट लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी विजन इज़ नॉट जस्ट टू क्रिएट लीडर्स। हम सुबह से बात कर रहे हैं सारे पैनल डिस्कशन में कि फ्यूचर लीडर्स बनाने हैं, राइट, एंड हमें जॉब जनरेट करनी है। बट लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी काफ़ी क्लियर है कि वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग लीडर्स, वी आर रेजिंग ethically passionate leaders. So that's the vision. And Chancellor sir का vision जो लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी के हैं वो यही है कि skills definitely, which is what everyone is looking out for, skills, but then again बहुत ज़रूरी है fundamental knowledge. So skills के साथ साथ fundamental knowledge and human strength. When I say human strength, Lambrin Tech Skills University believes that critical thinking, creative thinking, and confidence in every youngster who is joining us is the vision of Lambrin Tech Skills University. जी ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। मैम चितकारा यूनिवर्सिटी च एक खास चीज़ है बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी इज़ बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ 2 टीचर्स जी डॉक्टर मधु चितकारा एंड डॉक्टर अशोक चितकारा, जो कि आप एक टीचर्स सन। उस तो बाद उन्होंने फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू PhD लेवल दे हैव टॉट एवरीबडी, और इसी चीज़ नूं देखते हुए उन्होंने ये यूनिवर्सिटी इस्टैबलिश की थी। एंड देयर टोटल इन्वॉल्वमेंट, जिवें अजकल AI बहुत ज़्यादा साडी एजुकेशन च आ गई है। Dr. Ashok Chitkara at this age, he still takes classes in artificial intelligence with all the streams of the university.
ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਟਐਵਰ ਫੀਲਡ ਇਟ ਮੇ ਬੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। And with the result, more than 200 startups have been initiated by the university, have been supported by the university, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ teachers or students equally involved हैं। जी, मैं मनीष कुमार जी का भी रुख करूंगी। मनीष जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि बॉर्डर पे है यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब के लोग जो बच्चे हैं वहाँ जाके एडमिशन लेते हैं, तो मेरा एक सवाल ये भी है कि कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और एक मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी कि लॉ का कोर्स, हम ज़्यादातर देखते हैं कि लॉ का कोर्स जो होता है कि हमारे दिमाग में भी होता है, अगर हमने लॉ करनी है तो हम चंडीगढ़ में आके पंजाब यूनिवर्सिटी से करेंगे, या छोटे जो शहरों में वहाँ पर ऐसे कोर्सेज़ नहीं होते हैं कि लॉ वगैरह के लिए उन्हें कोई अच्छा कॉलेज मिले। तो आपके यहाँ कौन कौन से कोर्सेज़ जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और लॉ का कोर्स है यहाँ पे? थैंक यू। 2009 में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी जी। एंड तब से बहुत सारे कोर्सेज इससे चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे हर साल एक नए कोर्सेज को ऐड भी किया जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि फार्मेसी डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ साइंसेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इसमें यूजी, पीजी एंड पीएचडी, ऑल इन ऑल कोर्सेज इन ऑल स्ट्रीम्स दैट वी आर हैविंग। लॉ डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आसपास हमारे यूनिवर्सिटी के आसपास लॉ स्कूल्स, कॉलेजेस नहीं हैं, और बहुत सारे बच्चों की ये इच्छा होती है, आजकल बड़ा इंटरेस्ट है बच्चों का कि आफ्टर दी क्लास 12th दे वांटेड टू गो इन दी लॉ एजुकेशन, और इसके लिए वो दे आर लुकिंग फॉर कि कोई ऐसा यूनिवर्सिटी हो जो कि हमें लॉ एजुकेशन दे सके। मैं बताना चाहूँगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिमाचल और पंजाब और JNK के जो हमारे विश्वविद्यालय में इस समय पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ BA, LLB, BA, BB, LLB, LLM, PhD that we are having in our institution. Other courses में हमें एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इन सभी में जो भी इमर्जिंग एरियाज़ हैं उससे रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं। अभी बहुत सारी बात तो हो रही थी कि AI, साइबर सिक्योरिटी, IoT, तो इन सभी इमर्जिंग एरियाज़ में वी आर हैविंग स्पेशलाइज्ड कोर्सेज in association with different industries, जो भी उनकी एक्सपर्टीज़ है उन सभी एरियाज़ में हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एजुकेशन ले रहे हैं और उनको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है वहाँ से। जी, मैं अनु कौशल जी का भी रुख करूंगी। अनु जी, जिस तरीके से आपने बताया कि लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी में किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, पर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से कैसे अलग है लैमरिन? राइट, आई थिंक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रीति ने। ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। व्हेन आई से दैट लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी इज़ पंजाब्स फर्स्ट एवर इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड university, and talking about skills, I'd like to say it's not just we are having collaboration with big names like IBM, but जब मैं बोलती हूँ हम इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड हैं, तो इवन करिकुलम डेवलपमेंट की हम बात करें, so we are coming up with the courses which is actually the demand of the day. So curriculum is not just something which professors or teachers are looking into. IBM के experts हो गए, L&T के experts हो गए, किस तरह से हम students का to keep that intellectual kettle boiling as per what is required in the market is what we are doing. So that's something which we are really proud of, and we are happy कि हम उस तरह की need जो students की है उसको हम cater कर पा रहे हैं। And definitely यहाँ पे एक और बात मैं साझा करना चाहूँगी सबके साथ कि लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी, because पंजाब में है, but we are actually
getting the students from all over India, from 24 to 25 states. So I'm so proud because जब हम university की बात करते हैं, you know, university में वो vibrant culture, students जी. coming in from, let's say, Bangalore, Hyderabad, Manipur, Kashmir. So इस तरह का vibrant culture and a skill university, you know, incubation, innovation center. So this is what is Lamron Tech Skills University about, and this is how it is different from any traditional university, I'd say, Preeti. ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗੀ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ AI ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਦ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਆਗਮੈਂਟ ਯੋਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੈਦਰ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣ ਵੈਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ B.Ed ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂ ਐਨਹਾਂਸ देयर ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ I'll give you a small example ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ Google Gemini ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਆਮ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਹੋਣ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ that is through the tools of artificial intelligence. The only thing is, even a teacher has to upgrade himself or herself every day. Don't take it as a challenge. Make it as a tool for teach or whatever profession. कि ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ use ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ jobs ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ rather jobs ਵਧਣਗੀਆਂ but the only thing is a student and a teacher needs to upgrade himself or herself every day. In our university, what happens is we have courses in management, we have courses in engineering, we have teaching, allied health sciences, pharmacy, hospitality. What we have done is, and of course law also, har department which ਅਸੀਂ ਇੱਕ module AI ਦਾ ਵੀ include ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ students artificial intelligence tools, maybe ChatGPT, Grok, Google Gemini, so on and so forth ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੇ that it is a competition ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੌਬਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ जी मनीष जी मेरा सवाल एक ये भी है कि जिस तरीके से पंजाब के बच्चे आप बता रहे हो कि पंजाब के बच्चे वहाँ पर जाकर पढ़ाई करते हैं वहाँ पर एडमिशन्स लेते हैं मेरा ये भी सवाल है कि पंजाब सरकार की तरफ से भी कोई सपोर्ट आपको किया जा रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे जो भी स्टूडेंट्स पंजाब से आते हैं जो पंजाब की कैटेगरी स्कॉलरशिप है दैट दी स्टूडेंट्स आर गेटिंग जो भी पंजाब के स्टूडेंट्स हैं पंजाब सरकार के द्वारा उनको स्कॉलरशिप दी जाती है वो उनको मिल रही है जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और जितना भी अमाउंट उनको स्कॉलरशिप में मिलता है उसके अलावा जो भी हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर होती है वो सारी फ़ीस स्ट्रक्चर हम भी उनको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी स्कॉलरशिप के उस पर हम उनको देते हैं जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई जो कैटेगरी स्कीम्स हैं उसका स्टूडेंट्स बेनिफिट ले रहे हैं कुछ चीज़ें होती हैं जैसे टाइमली डिसबर्समेंट नहीं हो पाता है तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये है कि बाय एंड लार्ज हमें उसका सपोर्ट उनकी गवर्नमेंट का सपोर्ट है एंड स्टूडेंट्स आर गेटिंग द स्कॉलरशिप थोड़ा सा ये कि टाइम वो हो तो बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो तो मैं तो यही चाहूँगा कि स्मूथली ट्रांजिशन हो जो भी स्कॉलरशिप का है तो बच्चे और उनके पेरेंट्स को ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए ये सारी चीज़ें हैं
बट अदर स्टेट के भी जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारे हिमाचल के भी हैं, उनको भी जो हिमाचल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल रही है वो भी टाइमली उनको मिलती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि पंजाब स्टूडेंट्स को भी जो स्कॉलरशिप है, जो पंजाब के बच्चे हैं उनको भी टाइमली अगर स्कॉलरशिप मिले तो उनकी पढ़ाई में उनको कोई व्यवधान ना हो। और बाकी तो अर्नी यूनिवर्सिटी हमेशा इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि बच्चों की एजुकेशन होनी चाहिए, और जो फीस है वो उसके लाइफ में एक बैरियर नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह का हर्डल नहीं होना चाहिए, और उस दिशा में हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो फीस स्ट्रक्चर हमारे यहाँ हिमाचल में हमारी सारी फीस स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, और उसके बावजूद हम काफ़ी लो फीस बच्चों से चार्ज करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि एक अफोर्डेबल एजुकेशन, मतलब जो गवर्नमेंट ने हमें तय किया है उससे भी नीचे हम फीस चार्ज करते हैं, जिससे कि बच्चे अफोर्डेबल एजुकेशन हमारी संस्था से ले सकें। और हमारे ऑनरेबल चांसलर डॉक्टर विवेक सिंह जी का ये सपना है कि जो भी स्टूडेंट्स हम आसपास के स्टेट्स के हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, और कम पैसे में अफोर्डेबल एजुकेशन, और जो एजुकेशन जिसको लेने के लिए वो दूर दराज जाते हैं, जिसमें उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फाइनेंशियली प्रेशर होता है, वो चीज़ उनको ना हो। वो सारी एजुकेशन हम उनको उनके घर के पास के जो इंस्टीट्यूट हैं, लाइक हमारा जो अर्नी विश्वविद्यालय है, वहाँ से वो ले सकते हैं। चाहे जितनी भी एडवांस एजुकेशन हो, लॉ हो, इमर्जिंग एरियाज़, आप आईटी की बात कर रहे हैं, एआई, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, इन सभी एरियाज़ में वो एजुकेशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो एनसीसी और एनएसएस में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनसीसी के माध्यम से जो एबी और सी जो सी सर्टिफिकेट्स है वो भी उन्होंने क्लियर किया है, और भारतीय सेना में एक अच्छी पोजीशन पे भी उनको जगह मिली है, उन्होंने अचीव किया है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू गिव फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी। और एक जो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बेस है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो एनएसएस के स्टूडेंट्स हैं, अभी आपने देखा होगा कि हिमाचल में फ्लड की बहुत बड़ी मार पड़ी थी, हमारे आसपास की एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, सभी पूरी टीम, इनफैक्ट चेयरमैन ऑल्सो, हम सभी लोग मिलकर के आसपास की एरियाओं में जितना भी सपोर्ट हो सका वी हैव डन। हमने ओपन किया अपने मेस को कि किसी को खाने वाने की कोई ज़रूरत होती है तो हमारे मेस से कर सकता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट इन आवर स्टूडेंट्स, कि केवल रोबोटिक्स की तरह ही ना रहें, एक ह्यूमन टच उनके अंदर जरूर आना चाहिए। क्योंकि एआई की जो बात हम लोग कर रहे हैं, एआई को समझना बहुत ज़रूरी है, क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी कैसे इसको आगे लेके चलेगी, बच्चों को, फैकल्टी को कैसे हेल्प मिलेगा, कैसे हमें उन बच्चों को और फैकल्टी को, स्टाफ को अपग्रेड करना है एआई के हिसाब से, या एआई को कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन लाइन ऑफ दैट अभी हमने एक इंडस्ट्री से टाई अप किया है जिसमें हम एआई और रोबोटिक्स की लैब ही अपनी यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और विद इन 2 days दैट विल बी डन। और उसमें जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, दे वुड बी अवेलेबल इन द कैंपस थ्रू आउट द ईयर, एंड वो बच्चों को पढ़ाएंगे भी, उनको इंटर्नशिप भी देंगे, लाइव प्रोजेक्ट पे काम भी कराएंगे, और उन्हें स्टाइपेंड भी देंगे, जिससे ये होगा कि वो वहीं चीज़ों को सीखें, और जो भी उनको अर्निंग की रिक्वायरमेंट है वो वहीं से उसको पूरा कर सकें। सो इस तरह की हम लोग इस तरह की फैसिलिटीज़ अपने यूनिवर्सिटी में रखते हैं। और जैसे होटल मैनेजमेंट के बच्चे हैं, वो हमारे वो कैफेटेरिया पूरी एक वो ही चलाते हैं, एक रेस्टोरेंट है वो पूरा वही चलाते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड इन आवर यूनिवर्सिटी। जी मेरा सवाल अनु जी से भी है। एआई की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि लैमरिन में एआई को लेकर क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, एआई को लेकर बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है?
आई थिंक जैसे मैंने कहा प्रीति कि AI एंड एनीथिंग रिलेटेड टू से डाटा साइंस समथिंग वेरी प्रैक्टिकल जी आई एम श्योर हम सबके पास सारे लेटेस्ट कोर्सेज हैं, हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा IBM के एक्सपर्ट्स हमारे यूनिवर्सिटी में हैं, राइट? हम चाहते हैं हम उनसे काफ़ी सारे PBL दैट इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाएं, इस तरह के आइडियाज़ है बच्चों के जो इम्पैक्ट पॉजिटिवली कर सकते हैं सोसाइटी को। तो हम एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के किस तरह से वो आइडियाज़ को एक्चुअली एक फॉर्म दे सकते हैं विच कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी एंड दे कैन कंट्रीब्यूट मोर। बट मेरे ख्याल से छोटी छोटी बातें हम जब स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी में, आई एम श्योर यहाँ पे इतने सारे यंगस्टर्स हैं जिनके 99-98% आ चुके हैं। आई एम श्योर दे अंडरस्टैंड AI इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेनी बिग थिंग्स, बट देन मे बी आई कैन आस्क दीज यंगस्टर्स हु आर सिटिंग हियर, जब मैं AI की बात कर रही हूँ, आप में से कितने बच्चों को पता है GitHub के बारे में? आपकी प्रोफाइल उस पर है, आपने काम वहाँ पे शेयर किया हुआ है। इस तरह के सिंपल पैकेजेस, मे बी आई एम वर्किंग जस्ट ऑन पाइथन, आई हैव माई ओन पैकेज रिलेटेड टू EPL, वो मैं सारी सोसाइटी के साथ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। काफ़ी छोटी चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकली बच्चों को सिखा पा रहे हैं। यू विल फाइंड एवरी यंगस्टर, जिस तरह से सर ने कहा, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें AI नहीं है, चाहे हमारा लॉ का कॉलेज हो, चाहे हमारे पैरामेडिकल्स की बात हम करें, चाहे सोशल साइंसेस, everyone I can strongly say from our professors to our students, you will see they would be sharing data, they would be sharing some kind of unique packages. GitHub पे प्रोफाइल है, LinkedIn पे है। Other than this, I definitely say and encourage all the youngsters sitting out here, be a part of a professional body, मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, मैं मैनेजमेंट की स्टूडेंट रही हूँ, चाहे मैंने 10 साल काम नहीं किया है, बट मेरी एसोसिएशन है वो चंडीगढ़ मैनेजमेंट एसोसिएशन, वो जलंधर मैनेजमेंट एसोसिएशन। एंड एज आई सेड कि अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। एंड एज अ डायरेक्टर ट्रेनिंग, आई स्ट्रांगली बिलीव हमारे बच्चे तभी अच्छे होंगे जब हमारे टीचर्स एंड प्रोफेसर्स लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। कितने प्रोफेसर्स की प्रोफाइल है GitHub पे? प्रैक्टिकल थिंग, राइट? हाउ मेनी ऑफ अस रियली अंडरस्टैंड? सो ये छोटी मोटी बातें हैं, एंड ये सारा जैसे मैंने कहा, हम जब कोलैबोरेट करते हैं LNT के साथ, IBM के साथ, एंड इवन आई कैन से प्राउडली the entire ecosystem, not just Punjab government, but then also bodies like NSDC, वो सपोर्ट करती हैं इस तरह की सोच को, आइडियाज़ को, मे बी financially or otherwise as well. So I'm very happy the way India is changing, so yeah, that's important thing, and the complete support from government, as I said, from the Punjab government as well as from the central government, I'd say, Preeti. जी संजीव सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से AI की बात तो हो रही है, पर जैसे हम भी हैं, अगर AI के बारे में अगर हमें कुछ भी पता चलता है, जैसे बात कर लें कि ChatGPT, अगर हमें कुछ भी जानना है तो हम फटाफट जाके ChatGPT पे डाल देते हैं। अगर पहले ये होता था कि अगर हमने कुछ जानना है, हम टीचर्स से पूछते थे, जैसे कॉलेजेस में है, हमें कुछ टॉपिक के बारे में जानना है तो हम अपने टीचर के पास जाते थे, उनसे समझते थे। आजकल ये हो रहा है कि एक YouTube भी आ गया था, YouTube पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब और अच्छे से जानने के लिए AI है, ChatGPT है, इस पे जाके हम बहुत अच्छे से सब कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा ये जानना है कि इसका इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी टीचर्स वगैरह पर पड़ रहा है कि किस तरीके से रोल बदल रहा है यूनिवर्सिटी का पढ़ाने में AI को लेकर। कि पहले एक टीचर हुआ करता था, आज वो टीचर से एक मेंटोर बन गया है। बिकॉज जो हर स्टूडेंट है उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत है। दिस इज एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन। फुली इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट क्लास में आता है, और अगर कोई प्रोजेक्ट दिया जाए, कोई प्रेजेंटेशन दिया जाए तो स्टूडेंट बना कर ले आता है। नाउ इट इज़ द जॉब ऑफ द टीचर टू सी कि उसमें कितना प्लेजरिज्म है और वो कैसे उस प्लेजरिज्म को दूर किया जा सकता है। यहाँ पर ज़रूरी होगा कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि किस तरह का प्रॉम्प्ट एक स्टूडेंट को एक AI टूल पे देना है ताकि उसे रिजल्ट सही से मिल सके। तो स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ गई है। उसमें से करेक्ट इंफॉर्मेशन कैसे लेना है, एक इंफॉर्मेशन आपके पास आई, फिर उसको आप वेरीफाई कीजिए गूगल पे, उसको वेरीफाई कीजिए विकीपीडिया पे, उसको वेरीफाई कीजिए अपने टीचर के साथ कन्वर्सेशन में, और उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट लेकर आइए। और वो तभी पॉसिबल होगा कि बोथ द टीचर्स as well as the students are fully equipped
to use an AI tool. और AI tool is not कि कोई जादू है. हमारे ज़माने में भी गाइड्स हुआ करती थी, हम लाइब्रेरीज में जाके बहुत कुछ जाना करते थे, जी। फिर उसको कंपाइल किया करते थे. आज वो हमारे सामने हमारे मोबाइल पे है या हमारे पीसी पे है. So we need to be aware of everything and how to use them properly in our lives. यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि properly use करने के लिए besides your IQ, that is the intelligence quotient, you should also have a social quotient and a spiritual quotient, ताकि हम सही से उस information को gather करें और उसको फिर analyze करें. इसके लिए our university has come out with a very unique idea. हमने एक happiness center बनाया है अपनी university में, where students go and relax and come out with brilliant ideas and share with the teachers and friends. वहाँ पर various हम spiritual leaders को, thinkers को बुलाते रहते हैं, जिससे students के साथ discussions भी होती हैं. जैसे पीछे His Highness दलाई लामा जी आए थे, बच्चों से उन्होंने बातचीत की, किस तरह उनकी growth हो, कैसे ये सब use किया जाए, उनको बताया गया. So it is nothing challenging, it is kind of a support to all of us. किस तरह हम AI को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और किस तरह उसे अच्छे से परफॉर्म करें और अपनी परफॉर्मेंस को ऑगमेंट करें. जी मनीष जी, जिस तरीके से आप पहले बता रहे थे कि आपकी यूनिवर्सिटी में बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाता है ह्यूमन टच, कि लोगों को सिर्फ वो रोबोटिक ना बने, तो मेरा सवाल बच्चों को लेकर भी एक ये है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि बच्चों पे प्रेशर बहुत होता है, कि उन पर एक तो एजुकेशन का वो प्रेशर है, उसके बाद अगर बात करें तो उनके दिमाग में ये भी रहता है कि बाहर अगर हमारी ग्रेजुएशन 3 साल की है, लॉ 5 साल की है, कि उसके बाद हमें जॉब मिले. अगर उन बच्चों को जॉब नहीं मिलती है कई बार, तो मेरा ये सवाल है कि बच्चे जो हैं मानसिक तनाव से भी गुजरते हैं, तो उन बच्चों के लिए किस तरीके से यहाँ पर आप लोग उन्हें टैकल करते हैं, किस तरीके से उन्हें समझाया जाता है, स्किल्स पर क्या काम किए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अभी हम शायद पहले डिस्कशन भी कर रहे थे जी कि प्रेशर हम खुद ही बढ़ा रहे हैं बच्चों के ऊपर. और एक कोई चित्रकार थे, उन्होंने एक चित्र पेपर में पब्लिश किया था. इसमें एक पेरेंट अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को लेकर के बस में बैठाने जा रहा था स्कूल के, और दूसरी तरफ एक ऊँट को पकड़ करके, बकरे को पकड़ करके एक उसको बूचर खाने ले जा रहा था, वो भी पकड़ करके. तो दोनों की आंखों से आंसू गिर रहा था. तो समझ में आया कि प्रेशर कहाँ पे है. वो उसमें कुछ लिखा नहीं था, बट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द वे वी आर ट्रीटिंग आवर चाइल्ड. वो बचपन से ही हम उसको मशीन की तरह यूज़ करते हैं. 2 बजे आया स्कूल से, उसके बाद स्केटिंग की क्लासेस चले जाओ, पेंटिंग की क्लासेस चले जाओ, शाम को ट्यूशन चले जाओ, 8 बजे फिर ट्यूशन पढ़ लो. मैथ्स की अलग है, साइंस की अलग है, इंग्लिश की अलग है. उससे कभी किसी ने पूछा कि तुमने अपने गार्डन में ये पौधा लगाना है, अपने गमले में कैसे लगाओगे? कभी किसी बच्चे ने घर में कोई टेबल उसकी टूट गई है, उसको कैसे रिपेयर करना है, कभी किसी ने बोला उसको इसको करने के लिए, बेटा ये देखो कैसे ख़राब हो गया, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? आई थिंक दे ऑल दी स्टूडेंट दोज हु आर सिटिंग हियर, मुझे लगता है कि इन सब को वो चीज़ करने में बड़ा मज़ा आएगा. वो बहुत अच्छे ढंग से उसको कर सकते हैं. लेकिन नहीं, हमें सिर्फ उनको रोबोटिक्स, इसीलिए मैंने बोला कि रोबोटिक्स, उनको हमें शुरू से उसी तरह से हम ट्रीट करते हैं कि जिस तरीके से हमें एक चैट जीपीटी का आपने एग्जांपल दिया, हमने इनपुट दिया और आउटपुट हमें मिल गए. सो दैट विल नेवर वर्क. कितने बच्चे ऐसे हैं जो हम आसपास ऑब्जर्व करें कि अभी समर वेकेशन हुआ है, अभी कुछ पैनल जो पहले बैठे थे उनसे बात कर रहे थे रिगार्डिंग कि हमें मोबाइल का टच ख़त्म करना है और बच्चों को कुछ अपने साथ जोड़ना है. कैसे जोड़ेंगे? कितने बच्चे हैं जो समर वेकेशन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं? नहीं जाते हैं. मनाली जाएंगे घूमने, ठीक है, अब्रॉड जाएंगे, प्लानिंग है घूमने की, तो कैसे होगा? हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट?
हम उनको उन सब थेरेपी से दूर कर रहे हैं, और बाद में क्या है, जब वो मेंटल प्रेशर में आएंगे तो उन्हीं सब थेरेपी को कराने के लिए वी हैव टू स्पेंड मनी। तब हम डॉक्टर को ढूंढेंगे, ये कौन सा डॉक्टर है, वो आकर के वही थेरेपी देगा जो ज़रूरत थी पहले, वो हम नहीं देना चाहते हैं। सो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक विच वी आर गोइंग टू डू, और वो हम हैबिचुअल हो चुके हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर बच्चों को टाइम मिले तो सही में इस तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग करें अगर हम अपने सिस्टम में, तो डेफिनेटली आवर सोसाइटी विल गेट गुड रिजल्ट। योर क्वेश्चन रिलेटेड विद आवर यूनिवर्सिटी, हम कोशिश यही करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन टच क्यों ज़रूरी है। जी वो बहुत ज़रूरी है। आप चैट जीपीटी से रिजल्ट तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर भी जब ट्रीटमेंट करता है ना, तो वहाँ पे एक डॉक्टर अगर बड़ा रूड हो और एक डॉक्टर बड़ा सिंपैथी दिखा करके आपको पॉजिटिव हीलिंग करता है, तो वो बीमारी जल्दी सही होती है। तो ह्यूमन टच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके लिए हम जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, उनको हम इस तरह की कई एक्टिविटीज़ कराते हैं जिसमें वो एक दूसरे का ध्यान रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे यहाँ नवरात्रि है, तो बच्चे किस तरीके से मेस में जो दूसरे रिलीजन के बच्चे हैं वो हमारे हिंदू बच्चों को या और दूसरे रिलीजन के बच्चों को ये फेस्टिवल में कैसे पार्टिसिपेट कर सकें। उनका अगर कोई फेस्टिवल है तो दूसरे बच्चे उनके फेस्टिवल में कैसे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो रिलीजियस नहीं है। यूनिवर्सिटी का एक ही धर्म है कि हमें उनको पढ़ाना है, अच्छी एजुकेशन देना है। तो होली में कैसे वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, दिवाली में कैसे पार्टिसिपेट करें, हम ईद में कैसे पार्टिसिपेट करें। दीज आर द एक्टिविटीज़ विच दे आर डूइंग। सब बच्चे आपस में मिलकर के ये काम करते हैं, और उससे मुझे लगता है कि ये ह्यूमन टच एक बहुत बढ़िया हील करता है हमारे स्टूडेंट्स को, एंड दैट इज़ वाई दे डोंट वांट टू गो इनटू एनी काइंड ऑफ प्रेशर इन आवर इंस्टीट्यूशन। और जो एक मेंटोरशिप का जो सर अभी जिक्र कर रहे थे, हमारे सभी टीचर्स कुछ बच्चों को 4 या 5 10 बच्चे हमने उनको एलोकेट कर रखा है, जिससे वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं। उनकी अपनी प्रोग्रेस, उनके पेरेंट्स से इंटरेक्शन करना, उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करना, मैनेजमेंट से कोई सपोर्ट चाहिए वो करना। तो ये सारे ह्यूमन टच के ही एग्जांपल्स आई एम गिविंग इट टू यू। इससे क्या होता है कि एक स्टूडेंट्स की अपने संस्था से बॉन्डिंग बढ़ती है, अपने टीचर के साथ बॉन्डिंग बढ़ती है। जो उसको पढ़ाई प्रेशर में लग रही है वो उसको एक इंटरेस्टिंग पढ़ाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ईज़िली वो अपने चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। मैं तो सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगा, हम सभी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, बच्चों से भी गुजारिश करूँगा कि एंजॉय अपनी लाइफ को आप एंजॉय भी करिए, पढ़ाई भी करिए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको भी समझ करके चलिए। ऐसा नहीं कि हमारे अब ये बात हो रही थी कि फाइनेंशियली हर पेरेंट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा अपने बच्चे के ऊपर खर्च करना चाहता है। जी ये आज नहीं, ये 25 साल पहले 40 साल पहले भी ये चीज़ थी, और आज की डेट में भी ये हो रहा है। लेकिन बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि हम पेरेंट्स को आसपास की लाइफ को देखते हुए इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे प्रेशर और घर में इंक्रीज़ हो, और ये प्रेशर आपको भी इम्पैक्ट करेगा, पेरेंट्स को भी इम्पैक्ट करेगा। एवरीबडी इज़ गोइंग टू अफेक्टेड बाय दीज काइंड ऑफ प्रेशर। सो आई थिंक द ह्यूमन टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी मस्ट थिंक, एंड द रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ रिक्वायर्ड इन आवर हैबिट्स। थैंक यू। जी अनु जी, मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आपने बताया कि आपके यहाँ बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जाती है, मेरा सवाल ये भी है कि पंजाब सरकार की ओर से भी बहुत काम किया जा रहा है शिक्षा को लेकर, स्कूल ऑफ एम्बिनेंस हो, टीचर्स को बाहर भेजना हो, तो आप सरकार के काम को किस तरीके से देखते हैं कि सरकार का क्या सहयोग है? आई थिंक डेफिनेटली काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। आई थिंक ये 3rd या 4th बैच होगा जी। टीचर्स का जो फिनलैंड जा रहे हैं, एंड
मैं भी फिनलैंड जाके आई हूँ, वहाँ के सिस्टम को समझ के आई हूँ, एंड आई बिलीव बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पैक्ट करेंगी, बिकॉज एज आई सेड स्टूडेंट्स तभी अच्छे होंगे जब हमारे टीचर्स अच्छे होंगे। तो ये स्टेप काफ़ी आई वुड से इज़ impactful, because the most important thing what I have learned जब मैं फिनलैंड गई हूँ, जिस तरह से हम सब बात कर रहे हैं, हम हमेशा बोलते हैं फ्यूचर लीडर्स, बच्चे ये बनेंगे, बच्चे वो बनेंगे, उनके फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बट एट LamRenTech स्किल्स यूनिवर्सिटी वी आर रूटिंग फॉर देयर हैप्पीनेस, एंड हम चाहते हैं कि आज जो बच्चे अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, सक्सेस से ज़्यादा दे आर यू नो वी आर वरीड ऑफ देयर हैप्पीनेस। सो ये बहुत ज़रूरी है। एंड फिनलैंड से हमने ये सीखा है, यू नो, एंड गवर्नमेंट के जिस तरह के स्टेप्स हैं, आई बिलीव इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी रेयर स्किल दैट वी ऑल नीड टू टॉक। एंड आई थिंक अगर इमोशनली इंटेलिजेंट टीचर्स, प्रोफेसर्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स में हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स ना केवल सक्सेसफुल होंगे, बट देन दे वुड सर्टनली बी happy, I would say, citizens. So this is very essential. So सरकार का जो रोल है, किस तरह से शायद हम कहीं मिस कर गए थे, हम IQ एंड AI की बातें ज़्यादा कर रहे थे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन काफ़ी कम हो रहा था। बट LamRenTech स्किल्स यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने कहा, AI के साथ साथ we believe a lot in emotional intelligence skills as well, and certainly human strength, you know, human strength is basically about creativity, critical thinking, and emotional intelligence की बात करें तो definitely प्रीति, I believe self regulation आजकल के ज़माने में हर एक बच्चे के पास ये स्किल होनी चाहिए। So that's मेरा very सवाल ये भी है important. कि आप जैसे बता रहे हैं कि आप फिनलैंड गए थे, तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला यहाँ के सिस्टम में और वहाँ के सिस्टम में, और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? Right. As I said, the number one thing is pressure, stress. I think ये दोनों चीज़ें वहाँ नहीं दिखाई देती हैं। बच्चे and teachers सब बेहद खुश and they are very happy. So I think ये सबसे बड़ा difference है। वहाँ के बच्चे कैसे हैं? खिलखिलाते हुए, हंसते हुए। So I'm very happy कि आपने ये सवाल किया। तो फ्यूचर लीडर्स या बच्चे सक्सेसफुल होंगे, इससे ज़्यादा प्लीज़ रूट फॉर देयर हैप्पीनेस कि बच्चे आज खुश हैं या नहीं हैं। दैट्स वेरी एसेंशियल। सो इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स इज़ द की वर्ड प्रीति, आईड से। जी संजीव सर, मेरा ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੈਨਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਲੈਂਗ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਨਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ, ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੇ ਦੇयर इज़ अ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ IQ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ abilities. Every child has an ability in himself or herself. एक teacher दी, एक university दी, एक institution दी यही responsibility, including parents, कि देखो कि उस बच्चे विच की ability है, और उसे ability ਨੂੰ अगर तुसी grow करोगे, तो whether it's a Gen Z or anyone else, he will blossom into a lovely flower. अगर ਅਸੀਂ सचिन तेंदुलकर ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ? So we have to identify कि बच्चे विच की ability है, उस ability ਨੂੰ अगर grow करिए and let the child convert that passion into his profession, success will definitely follow. And in this age of immense awareness, these Gen Zs are a future which can be very bright. Our only way is to support them, to help them, to blossom them into lovely human beings. छोटा एक शेर नाल मैं खत्म करांगा। जी। निदा फाजली ने क्या है, बच्चों के छोटे हाथों को
चांद सितारे छूने दो, एक दो किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे होंगे. So please identify Very nice. their abilities and let them जी. grow into lovely human beings. Thank you. मनीष जी, मेरा एक सवाल है कि हम एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, अब थोड़ी सी स्पोर्ट्स पे बात हो जाए कि जिस तरीके से बच्चे हम देखते हैं कि कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर, तो उसको रिलीज़ करने के लिए हमें थोड़ी एक्टिविटी भी चाहिए होती है. तो आपके कॉलेज में किस तरीके से उन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाती हैं? बहुत बढ़िया. अरनी विश्वविद्यालय इसके लिए हमेशा बात करता है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी हम काम करते हैं. और हमारे यहाँ जैसे लास्ट ईयर ही हमने एक टूर्नामेंट कराया था इसका वेट लिफ्टिंग का. उसके बाद हमने एक आर्चरी का भी टूर्नामेंट कराया. और हमारे यहाँ फुटबॉल एकेडमी, वेट लिफ्टिंग एकेडमी, आर्चरी एकेडमी, ये सारी चीज़ें हमारे इन हाउस है. वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जी. ये सारी सुविधाएं हैं. बच्चे एक अच्छा जिम है, आई थिंक दैट इज़ एवरीवेयर. बट जो हमारी जिस जगह पे हम हैं, एक तो हमारे विश्वविद्यालय के कैंपस के 1 किलोमीटर के अंदर ही यू विल फाइंड कि व्यास नदी वहाँ से जाती है. तो एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे है. नेचर का बहुत अच्छा आपको मिक्स मिलेगा वहाँ पे. बच्चों को नेचुरल सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं. एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं उन्होंने एक अपना पूरा ही एग्रीकल्चर फील्ड डेवलप किया है. एंड दोज हु आर स्टेइंग इन द हॉस्टल, जितनी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है उस एग्रीकल्चर फील्ड की, दैट जी. इज गोइंग इन द मेस. एंड स्टूडेंट्स आर टेकिंग द ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स फ्रॉम देयर. जी. और इस तरह की जो इन्वायरमेंट है, मोस्टली जो स्पोर्ट्स के लिए बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो स्पोर्ट्स के कोच हैं वहाँ पे. स्पोर्ट्स के लिए जो फील्ड्स हैं तो बराबर ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं. और जल्दी हमारे यहाँ एक नेशनल लेवल पे इसका वेट लिफ्टिंग का जी. आयोजन किया जाएगा, जैसा हमने लास्ट ईयर भी किया था स्टेट लेवल पे. तो आई थिंक वी आर डूइंग गुड जॉब इन द स्पोर्ट्स एरियाज and we are giving the good facilities to जी. all the students, those who are interested in sports, and by the help of the sports they are releasing their pressure जी. very quickly, and there is no problem at all in our university. जी, शुक्रिया सर. आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत अच्छे विचार रखे.